Okay, good evening everyone. Sorry we have to start this video again because of the audio compatibility issues. I hope now the sound is very clear. Please give a thumbs up in your comments if you're able to get the sound clearly. Is it now clear? Can we go ahead and do this? Just a moment. Is it now clear? Yes. Okay. So let's start. Thank you very much for having me on Sweet Zyka Group. My name is Sandeep Kalra. I'm the executive chef at the Ritz-Carlton, Bangalore. Thank you, Sweet Khatriji, and thank you, Gidanshu Khatriji, for inviting me over. It is an honor to be a part of the group. So today I'm going to be doing a very interesting recipe which is called the Paneer Rogan Josh. A lot of people have asked me that we love Kashmiri flavors and Rogan Josh is actually a meat preparation, and what can we do for a vegetarian version. So I thought let's do a paneer. Paneer is liked by all, so I think we were good enough to go ahead with the recipe of Paneer Rogan Josh. So I will introduce you to the ingredients as well. Now Rogan Josh, as we talk about, Rogan means oil and Josh means damdar. So damdar tel ki dish, so which has a lot of flavors, lot of spices as well. So and also what Kashmiri cuisine is basically a mixture of both Pandit cuisine and Muslim cuisine. So what I've done today is, for our viewers, I've brought these both cuisines together. Mixing the Hindu ingredients along with the Muslim ingredients tastes much better. That's what I have felt. Once you cook, you give us a honest opinion that how do you feel about it. So taking you down, Rogan Josh actually originated from Persia. It traveled to with the Muslim rulers, it traveled to Kashmir. So then Kashmir adopted this recipe of the classic Rogan Josh, which is in the red gravy, fiery, spicy, oil-based red gravy. So taking you down to the ingredients. So first we have to do a couple of pre-preparations, जिसमें हमें एक रोगन जोश का मसाला बनाना पड़ेगा. रोगन जोश का मसाला जो है ये आप पहले से ही बना के रख सकते हैं और काफ़ी सारी वेजिटेरियन डिशेस या नॉन वेजिटेरियन डिशेस में यूज़ कर सकते हैं. नाउ इस मसाले को बनाने की रेसिपी है, यू टेक अप्रॉक्सीमेटली 20 सिनेमन स्टिक्स, अप्रॉक्सीमेटली 2 बड़े चम्मच मोटी इलायची, 1 बड़ा चम्मच छोटी इलायची, 5 टेबलस्पून ऑफ ज़ीरा और 1 टीस्पून ऑफ क्लोव, करीब 1.5 टीस्पून ऑफ क्लोव. अब इसको आप इन सबको गरम मसाले की तरह ड्राई करके अगर पीसेंगे तो हमारा गरम मसाला, रोगन जोश का गरम मसाला रेडी हो जाएगा. सेकेंड थिंग जो हम कर रहे हैं वो है ब्राउन अनियन पेस्ट. अनियंस को फाइनली स्लाइस करके इसको धीमी आंच पे आप ऑयल के अंदर कुक करें, ये ब्राउन हो जाएंगे. उसके बाद पानी के साथ इसका पेस्ट करेंगे एंड यू विल गेट अ ब्राउन अनियन पेस्ट. सो ये हो गया हमारा प्री प्रिपरेशन. द थर्ड प्री प्रिपरेशन व्हाट वी आर गोना यूज इज पनीर. हम पनीर को डाइस कर लेंगे. हम यहाँ मलाई पनीर यूज़ करते हैं. मलाई पनीर क्वालिटी इज़ वेरी गुड विच कैन एक्चुअली रिजल्ट इन अ फैंटास्टिक पनीर डिश. सो इसको हम ऑयल में कुक करेंगे एंड देन we will fry it to a crisp consistency, so that when we use the paneer in the gravy, it should not lose its texture, it should not lose its color. It looks very nice when it is fried and we will keep it very crisp. Okay, the next part is we are gonna make the recipe. Now for making the recipe, following other ingredients. I know it is a lot of ingredients, it has a lot of quantities which are involved. The same recipe along with the quantity will be posted on my Facebook page, as well as Sweetie Khatriji will also post it on the Sweet Zyka group as well, for the viewers to see and to basically note down and prepare whenever you have a chance. So taking down you to the ingredients, we have हम एक चीज़ और, हम कभी भी इसके लिए नॉर्मल तेल या घी का यूज़ नहीं करेंगे. We will only use mustard oil for this. Mustard oil healthy होता है, कश्मीरी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा जाता है इसका फ्लेवर, और हम मस्टर्ड ऑयल से ही कुकिंग करेंगे. सो देखते हैं. करीब 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल. ऑल्सो आपको एक बार चम्मच की मैं बता दूँ, टेबल स्पून हम इसको बोलते हैं जिससे आप सर्व करते हैं. दैट इज़ द टेबल स्पून. इट हैज़ द क्वान्टिटी ऑफ 15 ग्राम्स और 15 ml.
द सेकेंड वन इज अ टी स्पून विच इज़ चाय वाला चम्मच, जिसकी क्वांटिटी है 5 ml और 5 grams. सो वी विल यूज़ दिस. अगेन जब मैं ग्राम में बोल रहा हूँ वो क्वांटिटी डिफर करेंगी. अगर फ्लावर है, चीनी है या कोई स्पाइस है, अलग अलग यूज़ करेंगे. तो मैं इसीलिए चम्मच का यूज़ जब 1 चम्मच या 2 चम्मच से करता हूँ. सो इट्स ईजियर टू डू इट एंड इट इज़ ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर एज वेल. चलिए अब देखते हैं रेसिपी हमारी. 1 tablespoon ऑफ मस्टर्ड ऑयल, हाफ टी स्पून ऑफ ज़ीरा, करीब 1 छोटी सिनेमन स्टिक. मैंने दो छोटी ली हैं क्योंकि एक लेंगे इसकी जगह. देन वी विल यूज़ 1/4 टीस्पून ऑफ हींग पाउडर विच इज़ एसाफेटिडा. वी विल यूज़ सिर्फ 2 क्लोव, 2 लौंग, क्योंकि हमारा लौंग काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस गरम मसाला में भी गया हुआ है. 50 ग्राम चिली पेस्ट जो कि कश्मीरी चिली से बनाया हुआ है. कश्मीरी चिलीज़ के सीड को निकाल के पानी में उसको बॉईल कीजिए और उसको थोड़े से पानी के साथ आप पेस्ट बना लीजिए, विच विल ऑल्सो गिव अ कलर एंड फ्लेवर टू योर रोगन जोश. द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज ब्राउन अनियन पेस्ट. सेम चीज़ बट 1 टेबल स्पून लिया हमने. आधा टेबल स्पून लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट. जिंजर और गार्लिक को इक्वल क्वांटिटी में लेके और उसका पानी के साथ पेस्ट बना लीजिए. फिर यही वाला मसाला जो कि हमारा रोगन जोश मसाला है, उसका करीब 1 टीस्पून लिया. आधा टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन गिविंग द कलर टू द रोगन जोश. सॉल्ट टू टेस्ट, स्वाद अनुसार. 100 ग्राम हमने लिया बीटन कर्ड. नाउ कर्ड को हम जब घर पे बनाते हैं उसको अच्छे से फेंट लें और फेंटने के बाद आपको प्योर कंसिस्टेंसी वाला एक कर्ड मिलेगा जो कि हम यूज़ करेंगे. Saffron, I am using Iranian saffron. This saffron is good enough for this much quantity of paneer what we are making today. Around 8 to 10 strands only. Then this is सौंफ का पाउडर. करीब 3/4 टीस्पून सौंफ का पाउडर लीजिए आप, और 1/4 आप लीजिए सॉल्ट विच इज़ द ड्राई जिंजर पाउडर. One more very important ingredient which is called रतन जोत. रतन जोत is basically the root of alkanet plant. एल्कनेट प्लांट की जो जड़ है उसको इकट्ठा करके एक इंग्रेडिएंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं रतन जोश. ये एकदम वुडी टेक्सचर का होता है, बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का होता है, बट दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट फॉर गिविंग कलर टू आवर रेसिपी. सो इसको एक और ध्यान वाली बात, रतन जोत कभी भी पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा. सो आपको हमेशा तेल या घी का इस्तेमाल करना पड़ेगा टू गेट द कलर एक्टिवेटेड. So you take a small quantity, 1 tablespoon of ghee or 1 tablespoon of oil. Once it is hot, you drop this रतन जोत, उसके अंदर डाल दीजिए और फ्लेवर को निकलने दीजिए. और उसके बाद देखेंगे आप पूरा जो ऑयल है, जो आपका पूरा घी या ऑयल है, वो पूरा लाल हो जाएगा. और वो लाल रंग को आप अपने रोगन जोश में डालेंगे तो कलर बहुत ज़्यादा उभर के आएगा उसका. ठीक है, मैं आज देसी घी डालूंगा उसके लिए. सो देसी घी और रतन जोत लास्ट के लिए रखा है. चलिए अब कुकिंग करते हैं. So as I said, I'll be only using mustard oil. Mustard oil की एक प्रॉपर्टी है, कुकिंग करने के लिए उसको आपको स्मोक करना बहुत ज़रूरी है. If you don't smoke your mustard oil, it will give a raw effect, raw flavor, which is not very much liked by anyone while you're cooking. इसको अब स्मोक होने देते हैं. जब ये थोड़ा स्मोक हो जाएगा थोड़ा सा और इसमें टेम्परेचर आने देते हैं. थोड़ा सा धुआं उठने दीजिए. जब धुआं उठेगा तभी इसकी कुकिंग में मज़ा आएगा. I think it has started smoking. I will take a little bit more of the mustard oil.
That's it. Okay, mustard oil को हमने स्मोक किया अच्छे से. Now we'll put जीरा into it. दालचीनी, cinnamon stick. एक मिनट के लिए इसको रख देते हैं. ओके, ये हो गया. इसमें डालेंगे हम हींग. हींग का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आना चाहिए. पूरी किचन महकने लगती है जब हम हींग बनाते हैं, हींग का तड़का लगाते हैं. साइड बाय साइड आई विल ऐड क्लोव्स इनटू इट और इसको अब थोड़ा सा कुक करेंगे. ओके, रेड चिली पेस्ट, देखिए ऑलरेडी कितना बढ़िया कलर इसका दिख रहा है. रेड चिली जब हम ऑयल के साथ में इसको हम करते हैं, कुक करते हैं, तो इसका कलर और ज़्यादा उभर के आता है. ब्राउन अनियन पेस्ट 1 टेबलस्पून. सो ब्राउन अनियन पेस्ट को थोड़ा सा हम यहाँ पे कुक करेंगे. ओके, देखिए पूरा ऑयल हमारे ब्राउन अनियन ने पी लिया है. अब ये जब ग्रेवी जैसे जैसे पकती जाएगी ये ऑयल बाहर आता जाएगा रोगन के फॉर्म में. बट इसको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको हमेशा चलाते रहना है. यू कांट लीव इट एंड गो बिकॉज इट्स ऑल गुड इंग्रेडिएंट्स व्हिच हैव बीन सॉटेड in mustard oil, so you can't leave it. You have to stay on, be more focused on it, be completely glued it. Okay, next ingredient, onion almost हो गया है. Now we will take approximately half tablespoon of ginger garlic paste. इसको भी भून लेंगे हम साथ में. थोड़ी सी हीट बढ़ा देते हैं. ओके, हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट और ब्राउन अनियन देखिए कितना बढ़िया से मिक्सचर बन गया है. नाउ वी विल ऐड द स्पाइस. जो हमने अपना रोगन जोश स्पाइस बनाया है, करीब 1 टीस्पून पूरा डाल देते हैं. साथ में डालेंगे रेड चिली पाउडर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाफ अ टीस्पून. और इसको थोड़ा सा अब चलाएंगे, मसालों को भून लेंगे थोड़ा. इस पे थोड़ा सा हम we will add a little bit of water, just a little bit. भूनना नहीं छोड़ना है इसको, भूनते रहेंगे जब तक इसका प्रॉपर तेल बाहर नहीं आता, जब तक इसमें हम पनीर डाल के इसको अच्छे से पका लेंगे. So this can be enjoyed with good basmati rice, steamed rice, और आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं. But I enjoy it with steamed rice because of the spice level in it, because of the hot content in it. So it's very enjoyable with hot steamed basmati rice. Okay.
ओके, मसाला हमारा भुन गया है। अब इसमें डालेंगे हम जो हमने 100 ml योगर्ट लिया हुआ है। We'll put that. और थोड़ा सा इसको ये देखिए हमारी ग्रेवी का and this time we can easily add the saffron strands, so all the flavors come out well. Or saffron, when it will broil along with the masala, when it will get cooked along with the masala, it will have a distinct flavor in the dish. ये देखिए सैफरन ने अपना ऑलरेडी काम करना चालू कर दिया अंदर. इट हैज स्टार्टेड लीविंग आउट द कलर इन द पैन, सो it will enhance the color, it will enhance the flavor of our dish, and it will complement the spice. Okay. इस टाइम पे मैं थोड़ा सा सीजन कर दूंगा अपनी ग्रेवी को. करीब 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाल दिया इसमें, ताकि सारे मसाले हैं वो अच्छे से रच जाएं, अच्छे से इसमें. इट शुड फॉर्म अ होमोजेनियस ग्रेवी, सो दैट इज़ द एक्ट ऑफ सॉल्ट. इट फ्लेवर्स, इट टेक्स आउट द फ्लेवर्स एंड इट ऑल्सो होमोजेनाइजेस, इट स्पीड्स अप द कुकिंग. सॉल्ट जब भी आप कच्चे खाने में करते हैं चालू, सॉल्ट आप पहले डालते हैं, क्योंकि सॉल्ट हमेशा कुकिंग को बढ़ोतरी देता है, थोड़ा उसमें हेल्प करता है ताकि हीट अच्छे से इवनली स्प्रेड हो. बहुत जल्दी बन जाएगा ये, बहुत टाइम नहीं लगता है. हाँ, टाइम लगता है गरम मसाला बनाने में और टाइम लगता है ब्राउन अनियन पेस्ट बनाने में. उसके अलावा आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. इन 20 मिनट्स यू कैन हैव दिस डिश सर्व्ड ऑन द टेबल. 20 मिनट्स. देखिए मसाले भुन रहे हैं अच्छे से और उसने ऑयल भी छोड़ना चालू कर दिया. ऑयल इज कमिंग आउट. इस टाइम पे हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसको हम बोलते हैं सौंफ का पाउडर. सौंफ पाउडर करीब 1 टीस्पून आराम से डाल सकते हैं. कश्मीरी रोगन जोश में 2 चीज़ों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक हो गया चिली एंड द सेकेंड वन इज सौंफ. अगर ये दोनों फ्लेवर्स अच्छे से निकल के आए आपके रोगन जोश में, देन इट इज़ ए गुड डिश. तो जब भी आप रोगन जोश खाएं तो इन 2 फ्लेवर्स को ज़रूर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए. वेदर यू हैव अ फ्लेवर ऑफ सौंफ एंड चिलीज एंड अ लिटिल बिट ऑफ जिंजर एंड गार्लिक. ओके, सो द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट एंड प्रॉब्ली द लास्ट इंग्रेडिएंट इज सॉल्ट पाउडर. करीब हाफ टीस्पून बहुत रहेगा सौंठ पाउडर. जितना आप सौंफ लेते हैं उससे करीब 1/3 या 1/3 आप सौंठ पाउडर लेंगे. देखिए कर्ड पूरा गायब हो गया है इसमें से, मसाले पूरे मिक्स हो गए हैं. अब बस ये तेल छोड़ना चालू करने वाला है एंड देन वी विल ऐड बॉइलिंग वाटर इनटू इट. Yes, any questions or anything that you want me to say upon, you're more than welcome.
पास यहाँ पे बॉइलिंग वाटर रेडी है और मैं ये बॉइलिंग वाटर इसमें करीब 1.5 लीटर डाला है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड अ कप ऑफ बॉइलिंग वाटर। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, द गरम मसाला व्हाट वी मेड, द रोगन जोश गरम मसाला, a lot of times at different places you will get whole spices in your masala. दोनों चीज़ें ठीक हैं. You can make a garam masala for rogan josh or you could use the whole masala as well. whole masala हम इसलिए यूज़ नहीं किया मैंने क्योंकि अदरवाइज जब आप पनीर खाएंगे उसके साथ में whole मसाला आपके मुंह में आएगा, which is not very pleasant. वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है. People don't like the flavors of the raw spices. So उस चीज़ को निकाल दिया. Even जो हमने दालचीनी का पीस डाला था वो भी हमारे पास विजिबल है, जो कि हम ग्रेवी फिनिश करने से पहले वी विल टेक इट अप. दोनों पीस नज़र आ रहे हैं, दोनों पीस इसी के अंदर हैं और वो हम निकाल देंगे. थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसमें, 1 लीटर भर के और रोगन जोश की ग्रेवी जो है, ट्रेडिशनल जो रोगन जोश है उसकी ग्रेवी बहुत कम होती थी, बट अब जो हमने कश्मीरी रोगन जोश अडेप्ट किया है उसमें ग्रेवी रहती है ताकि उसको हम आराम से राइस के साथ खा सकें. अदरवाइज़ जो ट्रेडिशनल रोगन जोश था पुराने ज़माने में उसमें ग्रेवी नहीं होती थी, उसमें खाली मसाला होता था. So gravy is all ready and just gonna taste it for finding out the spices and the salt. Salt थोड़ा सा और डालेंगे अब इसमें क्योंकि अभी पनीर जाएगा. Salt अपने आप इसमें. Okay, gravy is almost ready. Now we'll put in the paneer and then let it cook for approximately 10 minutes, 10 to 12 minutes, so that the paneer absorbs all the flavor, all the spices what we have in the rogan. Okay, अब इसको एकदम धीमी आंच पे इस वक्त रखेंगे, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे, एंड वी लेट इट कुक. अभी इसमें हमने ये जादू की छड़ी नहीं डाली है, वो डालेंगे अभी, वो लास्ट में डालेंगे जब हमारा रोगन बन के तैयार हो जाएगा. देन वी विल यूज़ द रतन जोत अल्कनेट रूट to flavor and to give color to the रोगन जोश. रोगन जोश ऑलरेडी बहुत लाल है, अभी अगर देखें इसमें काफ़ी अच्छा कलर आया है, बट रतन जोत डालते ही आपको पता चलेगा इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा. अब इसको स्टर हम बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि पनीर वुड ब्रेक. पनीर शुड नॉट ब्रेक इन आवर ग्रेवी. एंड दिस इज़ द टाइम आई एम गोना रिमूव खड़ा मसाला जो हमारे दो डाले थे हमने इसमें, दालचीनी और सिनेमन स्टिक्स. आई एम जस्ट गोना रिमूव इट. So chef, Miss Neetu Sharma says this looks very nice. All right. Miss Janvi says very nice, chef. Miss Reva says delicious, and Miss Asha has given a thumbs up. Thank you very much for tuning in and giving your time to us. स्वीट्स खत्री जी का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. I am really in for it. She's completely created a vegetarian foodies group, जो कि I don't think so it was existing. So thank you very much, Sweets. You have completely nailed it. I think a lot of people are turning vegetarian and also look for good vegetarian recipes. So I think this platform will give a lot of relief to them. Just coming through, which Sweets was speaking to me yesterday about. I think well done, Hitishu Khatri ji or Sweets Khatri ji. So almost 10 minutes up. Now is the time to do the jadoo. So I've taken a very small pot, very small pan.
इसमें थोड़ा सा देसी घी, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना बहुत होगा, करीब 1 टेबलस्पून है ये। इसको गर्म होने देंगे हम। या एक काम करते हैं, आपको सीधा दिखाते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। रतन जो सीधा तेल में गया, घी में गया, और इसको अब हम एक बारी पकने देते हैं, थोड़ा गर्म होने देते हैं। अब तेल के कलर को देखिएगा बस आप। अभी इसको हम स्ट्रेन कर देंगे, थोड़ा कलर आने दीजिए इसको। घी शायद थोड़ा सा और चाहिए होगा, घी मैं सारा नहीं डालूंगा। आई जस्ट वॉन्ट द कलर ऑफ द रतन जो टू कम आउट। घर के आपके पास घर पे जो भी छन्नी होगी वो आप उसको स्ट्रेन कर सकते हैं, और इसको रेस्ट देते हैं, आधे मिनट का रेस्ट देते हैं। ऑयल को बॉयल, घी को बॉयल आने देते हैं। तब तक हम अपना डिश पे फोकस करते हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल पानी और डाल सकते हैं अभी इसमें डिश में हम, क्योंकि ये बॉयल हो रहा है अच्छे से। इस वक्त पनीर ने अच्छे से इसका जो फ्लेवर है पूरा सोक कर लिया है। पनीर हैज़ बिकम सॉफ्ट एंड इट इज़ स्टिल ब्राउन, सो यू कैन से कि पनीर को फ्राई इतना ही करिए, उससे कम करेंगे तो बहुत ज़्यादा वाइट पनीर जो रहेगा वो अच्छा नहीं लगता है ग्रेवी में। इट इज़ गुड दैट इट इज़ इफ इट इज़ लिटिल मोर ब्राउन। देखिए अब घी भी छोड़ना चालू कर दिया है। हमारा जो मस्टर्ड ऑयल हमने जो बनाया था वो भी बाहर आना चालू हो गया है। तो एकदम स्लो आंच पे हम इसको अब रखेंगे। और यहाँ रतन जोत का कमाल देखिए आप। पहचान पा रहे हैं, ये वही आपका घी है जो आपने डाला था। ये देखिए। और अगेन टेलिंग यू, रतन जोत विल ओनली be dissolvable, or it will lose out its color only in oil and ghee. You can't use water. Okay, chef, there's a question from Mr. Durga Sivakuru. He wants to know what exactly is Ratan Jot. So it is basically a plant root which is called alkanet. Alkanet plant होता है, हमारे मैंगलोर में भी काफ़ी होता है। सो मैंगलोर से आप किससे भी पूछ सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल रेडिली ऑन लोकल शॉप्स एज वेल। कश्मीर में यूज़ होता है, मैसूर की मैंगलोर की डिशेस में भी यूज़ होता है। मुझे पता नहीं था कि ये मैंगलोर में भी होता है, आज ही पता चला। सो कश्मीरी स्पेशलिटी में जहाँ पे भी फूड कलरिंग यूज़ करना है, एंड यू कैन यूज़ दिस फॉर एनी डिश दैट यू वांट टू कलर। So I would say don't use preservating colors, don't use artificial colors. Use these colors of natural food. It is a food-based plant. Plant का color है, so that is the root. Okay, chef, Miss Asha Shah has a question. She wants to know if Ratan Jot is not there as a substitute. Is there anything that we can use? Kashmiri red chili paste, what we have put, that is one. Otherwise, अगर आप इस form में भी if you can show the viewers, if you eat the Rogan Josh in this form also, it is good. You don't need to add this, but Rogan Josh में जब तक रोगन नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा. So this contributes to the Rogan and the red color of the dish. Okay, I think इससे ज़्यादा कलर नहीं चाहिए हमें. So I will strain it out in small quantity. ये देखिए, सो ये मिला रतन जोत. अब इसको हम we will put it inside in the gravy. A little bit of water. So chef, Miss Kaveri Das Singh has a question. Yes. Does Ratan Jot has any flavor of its own? No, it is basically neutral. It has not any. It is very neutral. So it will not impact the quality of your product, but it will just give the color. So now we'll add the Ratan Jot. See the color. It is outstanding color of this, and
and then we add it into our Rogan Josh. इसको साइड पे रख देते हैं, काफी गर्म है ये। Correct, chef. So Miss Poonam Ojha has a question for you. She wants to know if onion and garlic can be used in this dish. I've used paste of onion and garlic. That's why in the beginning I said it's an amalgamation of Muslim and Pandit cuisine. Basically, Pandits do not use onion and garlic. They flavor their Rogan Josh with yogurt. So instead, I've brought both these cultures together, Hindu cuisine and the Muslim cuisine. We've done it together. So there is onion garlic also in it, and there is yogurt also in it. If you don't eat onion and garlic, you can do without it with more yogurt. So yogurt will be the contributing element. It will give the body to the sauce, so to the gravy. Okay. बस इसको अब हम 1 मिनट और कुक करेंगे ताकि जो रतन जोत का घी डाला है वो अच्छे से मिल जाए, एंड देन वी आर डन विद द ओके। आई जस्ट टेस्ट द लास्ट बिट। Very nice, spicy, full of flavors, and here we are, we plate it. So I'm going to plate it right here for you. So chef, Miss Neetu Sharma has a question. Yeah. She wants to know if we can make this gravy with couscous. Couscous, I've never thought about it. I've never tried it also. बट couscous आप क्यों यूज करना चाहते हैं इसमें? couscous से कभी ट्राई नहीं किया है, मालूम नहीं है प्रोडक्ट कैसा आएगा. सो आई थिंक लेट्स स्टिक टू द क्लासिकल एलिमेंट. अगर हम अपनी तरफ से कुछ भी किसी चीज़ में डालते हैं तो वो क्लासिक जो उसका एलिमेंट है वो चीज़ चली जाती है. सो टू बी कॉल्ड रोगन जोश इट नीड्स टू बी क्लासिक. अदरवाइज वो पनीर का कोरमा बन जाएगा. योगर्ट और पॉपी सीड का पेस्ट बना के डालेंगे तो वो कोरमा साइड में चला जाएगा. So which we don't want to do. Maybe some other time. So chef, Miss Neera Arora has a question. Yes. She wants to know if Ratan Jog is only used to give good red color or for any other purpose as well. It has good medicinal benefits on the body also. But yes, in the cuisine, we are majorly concerned about giving color to the food. But it is a good medicinal plant which can give a lot of good skin properties of skin it has. So you can get glowing skin. Miss Neera, I think, will require this medicine to give her more glow to the skin. So please use it. So now you can see the amount of Rogan it has. If you want to reduce, you can use less Ratan Jot on it. Just give a little bit color. Now Rogan Josh, otherwise authentically if you see Rogan, अगर Rogan Josh पे नहीं होगा तो उसमें मज़ा नहीं. So I would recommend use the right quantity and then be happy eating your Rogan Josh with steamed rice. Thank you very much. That's all from me. We've done a new recipe today and hopefully we'll see you soon. Thank you Suti ji, thank you Vitishu ji for having me over on Sweet Zaiqa. And yes, we will post the recipe on my link as well and also on Sweet Zaiqa very soon. Thank you very much. Bye from here.